مت کرو وان شبابہ فیما بلا، جوانی کے تعلق سے قیامت میدان محشر میں سوال ہوگا۔ ومالہ من این اکتسب وفیما انفق، اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا۔ ابھی مال کے اوپر بات ہو رہی تھی، مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ کوشش کرو حلال طریقے سے کمانے کی، حرام طریقے سے کبھی بھی ہرگز بھی مت کماؤ۔ حرام پیسہ اگر کوئی کماتا ہو اور حرام طریقے سے کماتا ہو تو میرے بھائیو، حرام کا پیسہ کھانے والا اور حرام طریقے سے کمانے والا، اس کی زندگی کے اندر جو بھی عبادت کرے گا، مطعمو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے لباس، اس کی پرورش اگر حرام پیسوں سے کی گئی ہو تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عبادت ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کی عبادت ایکسپٹ نہ ہوگی۔ ذرا تصور کرو، سوچو میرے بھائیو، آج مال کیسے کیسے طریقے سے لوگ کمانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والوں، بہت سے لوگوں کو ہم نے ادھر سنا ہے، سودی کاروبار کرنے والے لوگ بہت سے لوگ موجود ہیں، مال کما رہے حرام طریقے سے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، 25% زیادہ لیتا، 25%، 1 لاکھ میں 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے کہاں چلی گئی، ہاں تمہاری انسانیت کہاں گئی، تیرا ایمان کہاں گیا؟ سوچو، محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، قرآن کی پر ایمان رکھنے والا، جب قرآن چینج کر کے کہتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، او لوگوں تم بڑھا چڑھا کر کے کسی سے لینے کی کوشش مت کرو۔ ہاں اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے اور بہت ہی بڑا جرم گناہ بتایا ہے اور بہت ہی بڑا جرم بتایا ہے۔ کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا اس کے لیے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا بتاؤ اللہ سے کون لڑے گا؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے جو اللہ سے مقابلہ کرے، اللہ کے فرشتوں سے مقابلہ کرے؟ اس سودی کاروبار کرنے والوں اور کٹیہار بہار اور پورنیہ کے لوگوں ذرا سنو، اور ہندوستان کے باہر مسلمانوں، یہ سودی کاروبار سے توبہ کرو، اپنے آپ کو ان رشوتوں سے روکو، منع کرو، اپنے بچوں کو منع کرو۔ یہ سودی کاروبار اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ مال تم نے کیسے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ ہمارے یہاں مال کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب بیٹا کی شادی کی بات آ رہی، لڑکی پسند آ گئی، خوبصورت ہے، اچھی ہے دکھنے میں، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، دے گا کتنا؟ 1 لاکھ۔ وہاں تو 1.5 لاکھ مل رہا ہے، وہاں بھاگا، وہاں لڑکی پسند آئی، پیسہ کتنا؟ 1.5 لاکھ، کہیں سے پتا چلا 2 لاکھ ہم دیں گے، وہاں سے وہاں بھاگا، اور وہاں جانے کے بعد اگر کہیں سے پتا لگ گیا تو ہمیں 3 لاکھ دیا جائے گا، اس کی بیٹی سے شادی کر لو۔ اب وہ دینداری نہیں دیکھے گا، لڑکی کیسی ہے نہیں دیکھے گا، بس پیسے کے چکر میں آ جائے گا۔ 3 لاکھ دے رہا ہے، گاڑی دے رہا ہے، پلنگ دے رہا ہے، ہاں فریج دے رہا ہے، کولر دے رہا ہے، پنکھا دے رہا ہے، یہ ساری چکروں میں حرام مال کے چکر میں اپنے بیٹے کو برباد کرنے والوں سنو، یہ بھی حرام، اور جہیز لینے والوں سنو، جتنی بھی لڑکیاں زناکاری کر رہی ہے اس میں تمہارا بہت ہی بڑا رول ہے، تمہاری وجہ سے ہماری بہنیں زناکاریاں کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ اگر تم نے نکاح کو آسان کیا ہوتا تو آج ہماری بہنیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اس طریقے سے غلط کام نہ کرتی۔ تمہاری وجہوں سے اور تمہاری کارنوں سے، اور جتنا امیر آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا انٹرنیشنل فقیر مانا جاتا ہے، جتنا پیسہ والا ہے وہ سوچتا مجھے کار ملے، مجھے
और ज्यादा पैसे मिले, जब तुम्हें तुम मालदार हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा नवाजा है, तो मेरे भाई जब पैसा दिया हुआ है तो गरीब घराने से या किसी ऐसे दीनदार लड़की से बगैर पैसा के बगैर जहेज के निकाह करो। निकाह को आसान करो। निकाह मिन सुन्नती फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। तसव्वुर करो समाज के अंदर ये जहेज का बोलबाला है, और जहेज की शादी कराने वाला सुनो, अगुआ पछुआ लोगों, जो शादी कराने वाला यहाँ नहीं, यहाँ हम ज्यादा दिलवाएंगे, वहाँ ज्यादा दिलवाएंगे, उस लड़की को छोड़ो, उस लड़की को पकड़ो, वहाँ का उसका बाप बड़ा मालदार आदमी है। ओ जहेज लेने वालों, आज ये भी सुन लेना, जहेज लेने वाला कभी अपनी जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं काट सकता है। उसके घर में बरकत कैसे आ सकती है, उसके घर के अंदर बरकत कैसे हो सकती है, और सुकून कैसे मिल सकता है, जिसके बाप को तुमने रुलाया हो, और जिसको बाप को तुमने चंदा करने पर और भीख मांगने पर तुमने मजबूर कर दिया हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी बेटी के लिए भीख मांगते हुए, उसने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा। बहुत से मौलवियों को हमने देखा है, और बाकायदा फोन में बात करते हुए मैंने सुना, कहा मौलवी साहब बात किया ये है कि मजबूर हो, ये कहने के ऊपर दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपसे ये बात कहूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी लगाई है। ओ मौलवी साहब अगर मेरी मदद हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, और आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी मदद कीजिए। शादी लग चुकी है, निकाह होने वाला है, लेकिन मेरा होने वाला दामाद और उसका बाप इतना डिमांड किया हुआ है कि मैं अपने जमीन बेच भी चुका हूँ, और जो मैंने अपने बैंक बैलेंस में जो पैसा जमा किया वो भी मैंने ला लिया है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया इस समाज को। इन जलसों से क्या फायदा होने वाला है, ये जलसा तुम करा रहे हो, अपने आप को बदलो, जहेज के इन रस्मों को अपने यहाँ से खत्म करो, बाइकाट करो। जहेज लेने वाले के शादी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, वो वलीमा की दावत से तब भी उसकी दावत अंदर लो। मेरे भाइयों अपने यहाँ से जहेज को खत्म करो। इन तमाम मौलवियों से मेरा एक अपील है, गुजारिश है, ऐ मौलाना और ऐ मस्जिदों के इमामों सुनो, हाँ तुम्हें 1000 मिले न मिले, 2000 मिले न मिले, 500 मिले या न मिले, बल्कि चेक करो कहीं ये लड़के के निकाह में कहीं जहेज का तो कारोबार नहीं है, लेन देन तो नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो बोलो कि मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह के लिए ये काम करो मेरे भाई, कलाम सुनते तेरे यहाँ रोजाना तो आएगा ही नहीं। आप अपने मस्जिद के इमाम हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस जहेज को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे, सोचो। फरमाया तुमने माल कहाँ से कमाया ये भी पूछा जाएगा। हाँ तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तब मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से। ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों जमीन जायदाद बिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो, और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो, और ऐसे बाप को मेरे भाइयों कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है। अपनी दर्द को कहाँ कहाँ वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई एक कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इस हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों निकाह करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के
मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद ना जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, फलां लड़की मुझे पसंद है, 4, 5, 10, 20 आदमी जाकर के निकाह करके ले आओ और वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2, 4, 10, 20, 100 लोगों को खिलाने की खिला दो, निकाह कर लो। शादी के कार्ड बांटे जाए और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाए, 2-4 लाख खर्च किए जाए। मेरे भाइयों, निकाह तो इजाब कबूल का नाम है, बस तो इजाब कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए और वली और वहाँ पे जो गवाह हैं वो मौजूद हो, बस इतने लोगों के और महर मुतय्यन हो जाए, बस इतने करने की जरूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने और आपने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्त में लोग निकाह नहीं करेंगे, ज़िना किया करेंगे, लड़कियों से मिल लेंगे, अपने सेक्स को पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को कभी यहाँ कभी वहाँ जा करके पूरा करेंगे और लड़कियां बाकायदा ये और ज्यादा करने की कोशिश करेंगी। मेरा बाप तो मेरी शादी कैसे करवाएगा, 3-4 लाख शादी में खर्चे होते हैं, हम 4 महीने 5 महीने, हमारी शादी कैसे हो पाएगी। मेरे भाई, ये लड़की क्या करेगी बताओ, या तो फांसी लग करके मर जाएगी, या तो कहीं भाग जाएगी, या तो किसी के साथ जाकर के चली जाएगी, जो गैर लड़कों के साथ। हमारी मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही है, इसकी वजह एक ये है, जहेज की लानत है। ओ लोगों, अपनी बहनों को रोको, अपनी बहनों को गैर मुस्लिम लड़कों के पास तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे करतूत का ये नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे अमाल का ये नतीजा है। आज वो गलत कर रही है, कल हमारी बहनें भी हो सकती है, तेरी बहनें भी हो सकती है। आने वाली नस्ल के अंदर ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस वजह से मुसलमानों, इसको बाइकाट करो, जहेज के ऊपर कदम उठाओ, सोचो, ऐलान जंग करो उसके लिए। हम जहेज न लेंगे, न जहेज हम देंगे, निकाह करेंगे इस्लाम के मुताबिक निकाह करो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है। और लड़की अगर तेरे घर के अंदर आ रही है, वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, लड़की तुम्हें सुकून देने के लिए आती है। जब उसको टेंशन इतना दे दोगे, वो तुम्हें सुकून देगी। कहाँ से सुकून देगी? कहते हो मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती है, कहां से मानेगी? उसके बाद तो तुमने जीने नहीं दिया है, अब तुम्हें जीने देगी। सोचो मेरे भाई, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात देखिए, हालात। वान उमरिही वमालिही मिन ऐन इक्तसब, पूछा जाएगा तुमने माल कहाँ से कमाया, और फीमा अनफ़क़, और तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया, कहाँ कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, लूटा, चोरी किया, डकैती किया, किसी को कत्ल करके मर्डर करके तुमने उसको मार डाला, उसके माल को तुमने हड़प कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तुमने किसी के ऊपर जुल्म करके तुमने नाजायज तौर पर उसके जमीन और जायदाद के ऊपर तुम करने में, भजपूरी गाना सुनने में और किसमें जिंदगी कट रही, वो तो खुद जानता ही है। मेरे भाइयों, अभी तो गेम में लगा हुआ, मत पूछिए। अभी तो एक और ऐप निकला हुआ ड्रीम 11 वगैरह, उसमें भी लगा रखा है। एक आदमी के बारे में बताने लगा, मेरा दोस्त, अरे मौलवी साहब, जुमे की नमाज पढ़ने गया था, वो इसी जुमे की बात है, पढ़ने गया था, उसी ने हमको बताया, मौलवी साहब मेरे बगल में आदमी ड्रीम 11 में देख रहा है, ये खिलाड़ी आउट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चेक कर रहा है मेरा कितना पोजीशन बढ़ रहा है, कितना घट रहा। बताइए, जुमा का खुतबा चल रहा है, वो कितना बड़ा गधा है, सोचिए, जुमे के नमाज में सब देख रहा है। अजीब मसला यार, गधा नहीं तो और फिर कौन है? जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी। वहां देख रहा, करोड़पति में क्या नमाज में क्या रखा हुआ है, बार बार चेक कर रहा। उसी ने बताया, हमारा वो दोस्त हमारा है, मेरे भाई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसने हमको बताया और कसम खा करके बताया, मौलवी साहब अल्लाह की कसम ऐसा में ये लड़का कर रहा था। बताइए, सोचिए मेरे भाई, जो तसव्वुर कीजिए, हालात कितने बुरे हो चुके। इबादत भी करने गया, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने गया, वो भी ड्रीम 11 में लगा हुआ है। कैसा मसला है, कितना गड़बड़ है, बताइए। सोचिए, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे को अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। सूरज की गर्मी अगर आपको मालूम करना, जून और जुलाई में बगैर जूते चप्पल के आप निकल पड़ो, बहुत गर्मी हो और जूते चप्पल के बगैर आप निकलोगे, बगैर कपड़े के आप निकलोगे, तो मेरे भाइयों 1 मिनट भी जमीन के अंदर रह नहीं सकते, इतनी गर्मी हुआ करती है। दौड़ते हुए आप भाग जाओगे। जिसके घर के अंदर प्लस्तरा किया हुआ हो, जिसके घर के अंदर ढलाई की हुई हो, उसके अंदर चलिए तो आपके पैरों के अंदर छाले पड़ जाएंगे। वो सूरज की
गर्मी 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर जो सूरज है उसकी गर्मी की यह हालत है। और जब 1 मील के पास सफर होगा तो उसके अंदर पैर रखेगा क्या आलम होगा, सोच सकते मेरे भाई। उस गर्मी से बचो, उस गर्मी से बचो। कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा, कुछ नहीं। उस जवानी, जिसकी जवानी की बात में अपने जवानी की बात में गुजारो। और तीसरा आदमी वो होगा वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। और तीसरा आदमी वो होगा, तीसरा शख्स और मर्द औरत वो होगा, वो होंगे जो जिसकी जिंदगी नमाज में, नमाज के इंतजार में मस्जिदों में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ के आया, ज़ोहर की नमाज पढ़ कर आया, असर की फिक्र करने लगा, ये काम कर लो, 3 बजे हमारे यहाँ असर की अज़ान होती है, मैं 3 बजे नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। हाँ मेरे भाइयों, नमाज करके, नमाज काम करके नमाज के फिक्र में लगा हुआ हो। अब असर की नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज पढ़ के आया, अपने काम में लगा। अब मगरिब का टाइम भी उसे मालूम है कितने बजे मगरिब की अज़ान होगी, और उसी वक्त अपना काम करके रेडी रहता, वज़ू बना करके, क्योंकि मुझे मस्जिद में जा करके नमाज पढ़नी है। अब नमाज पढ़ के आया, फिर मगरिब बाद काम के अंदर लगा, फिर काम करता गया, ईशा तक काम किया, उसे मालूम